Aditi ma'am. Ji sir. A very warm and pleasant good morning to one and all. I am Professor Aditi Khandelwal, and it gives me immense pleasure to welcome you all on behalf of Vishesh School of Management in our very last day of Student Induction Program 2020. Today, we are enlightened with the presence of our today's chief guest, CA Pankaj Shah, speaker of the day. Sorry. Ex-chairman of Institute of Chartered Accountant of Indore. I would also like to welcome our Institute Managing Director, Dr. Naveen Narang, Institute Director, SM Anas Iqbal, all the professor and students. Today, we all have gathered here to discuss about a very important topic, business, innovation, or evaporation. Like it is said, just as energy is the basis of life itself and ideas the source of innovation, so is innovation the vital spark of all human change, improvement, and progress. So, keeping with this word in mind and looking forward to listen from our today's guest. But before that, I would like to request Professor Anu Sharma to deliver the welcome address. Over to you, sir. Thank you, Aditi ma'am. Am I audible, sir? A very warm good morning to one and all. I, Professor Anu Sharma, on behalf of Vishesh School of Management, welcome you all in 4 days of Student Development Program. First of all, I wholeheartedly welcome to chapter. I also welcome our Managing Director, Dr. Naveen Narang, sir. I also welcome Academic Director, Dr. SM Anas Iqbal, sir. I welcome all the staff members of Vishesh School of Management, and I also welcome the newly admitted student to the 4 day of Student Development Program. I sincerely hope after this session, your knowledge will be upgraded. All the best. Thank you. Thank you so much. Now, moving ahead, I would like to share a brief profile of our today's chief guest come speaker, Dr. Shah, with all of you. Sorry, CA Shah, with all of you. CA Pankaj Shah is a senior chartered accountant, qualified company secretary, qualified insolvency professional, bachelor in law, bachelor in business administration, diploma in information system audit. He is also pursuing PhD in taxation. He was the chairman of Indore branch of CIRC of ICAI Indore for the year 2019-20. He is also on the advisory board of School of Commerce, Devi Ahilya University, Indore. He is a board member of Tax Bharat Tribunal. He is a prolific author on taxation and a national speaker in seminars and conferences. He is regularly representing before ITAT, BIFR, Settlement Commission, and other authorities. His opinions and articles are published in leading Delhi newspapers. With this brief background, I would like to request our chief guest, CA Pankaj Shah, for sharing his views and insights on this pertinent subject, business, innovation, or evaporation. And one more thing, I'm sure that you all will feel enriched with knowledge after completion of this session. I ensure that session will be profitable and next few minutes will be enjoyable and fruitful for all the students. Over to you, sir, please. Thank you very much, Aditi ji. Dr. Iqbal, the academic director, Mr. Narang, the managing director of the institution, Anju ji, the professor who has been instrumental for today's seminar, all the faculties and all young and dynamic future ambassadors of the country. It is a great delight to to interact this year with all the students who have very fertile minds and who will, I'm confident that they all will do wonders in the future. It is just that ignite has to be sparkled, and then you just need to see the magic.
It is a great delight to today interact with you on the topic of business and the importance of innovation. We know business is like jungle, survival of the fittest. And in today's times, when it is uh, we are moving from into a new world after this COVID pandemic, it is all different things. Some things which would have come or which we may have adopted after 10 years is now very much part of our life. Who had imagined that we will be interacting through this Zoom and other digital softwares? These softwares are not new. The meetings over the softwares, webinars were very much available since years, but we did not use it. And this pandemic has, we need to see the positive side of this. This has made great changes in our life. So this is also teaching us you better innovate, otherwise you will get evaporated. All those who are resistant to change, who are resistant to innovate, may perish. Innovation does not mean to discover something scientific, rocket science, or something. Innovation can be a small change or a major change or something which is done in a different way. Everybody does the thing, but if you do it a different way, that is also innovation. So innovation is something very, very wide. And today we will see some good business strategies and learn from the management lessons that how innovation has done wonders, has made changes in the world. The way we see the success stories of various corporates, the success stories of various products, it will just give us a thought. Okay, this is also a way in which we can think. This is also a way in which we can do. We all know today many startups have gone and become a unicorn, and same way many startups have failed also. But never be afraid of failure in the future. हम सब जितना डरेंगे उतना कुछ भी नहीं होगा. किसी ने कहा है, मैं अपना जो आज का उद्बोधन है वो शुरू करूंगा कि बचकर रहना दुनिया की परछाई से. लोग यहाँ पहाड़ भी बना देते हैं राई से. बनना है तो बहता हुआ जल बनो, क्योंकि ठहरा हुआ जल ढक जाता है अपनी इकाई से. तो हमें ठहरा हुआ नहीं बनना है, हमें कंटिन्यूअसली इवॉल्व होना है, कंटिन्यूअसली हमें सीखना है, आगे बढ़ना है, सोचना है. हम सब लोग जो करते हैं, हमारा इंडियन जो मेथोडोलॉजी था, एजुकेशन सिस्टम था, वो बहुत डिफरेंट था, वो क्रिएटिव था. पिछले 200 साल में जब ब्रिटिशर्स ने उनका एजुकेशन सिस्टम क्रिएट किया तो उसमें हमें बहुत अलग बना दिया, मोनोटोनस बना दिया, बहुत कुछ चेंज कर दिया. हम लोग सोचना भूल गए, हम लोग मेमोराइज करते हैं, रटने लगे हैं चीजें. एक समय में एजुकेशन का मतलब ये निकाला जाता था, आज से 30, 40, 50 साल पहले, कि जिसको जितना ज्यादा याद रहता है वो उतना इंटेलिजेंट है, वो उतना एजुकेटेड है. पर जब से कंप्यूटर आए, क्या हमें सब चीजें याद करने की जरूरत है? कोई भी इंसान हो, कंप्यूटर में अब जीबीज में मेमोरीज होती हैं, मतलब जीबी टीबी, आई डोंट नो व्हाट ऑल. तो अब मेमोरी इज नॉट अ प्री कंडीशन. फिर आप बोलेंगे उसको अप्लाई करना, तो एप्लीकेशन भी अगर रिपीटेटिव टास्क हो तो वो तो कंप्यूटर बहुत आसानी से कर लेता है और मच मच बेटर वे में कर लेता है हमसे. तो फिर हमारा काम क्या बचा? हमारा काम है सोचना. ये सोचने का काम कोई और नहीं कर सकता. तो इसी के साथ मैं अपना प्रेजेंटेशन आपके सामने शुरू करूंगा. आई होप इट इज विजिबल टू ऑल. इज इट विजिबल? यस सर. यस. तो मेरी जो फर्स्ट स्लाइड है, इट इज इनोवेट और यू विल गेट इवोपरेटेड. अपने आप को चेंज करें, कुछ नया करें, अदरवाइज हम सब खत्म हो जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा. नया नया डेवलपमेंट हर एक को करना है, हम सबको सीखना है. नया डेवलपमेंट, इनोवेशन कौन कर रहा है? दुनिया में हर एक आदमी इनोवेशन के अंदर लगा हुआ है. हम देखें, पहले बल्ब चलते थे, अब बल्ब की जगह ले ली एलईडी ने. दोनों काम एक ही कर रहे हैं, प्रकाश देने का, पर उन्होंने टेक्नोलॉजी को एडवांस किया, बहुत कुछ चेंज किया. और जो चेंज नहीं करते उनकी क्या स्थिति होती है? इसके पहले मैं एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज शेयर करना चाहूंगा.
हमारा जो दिमाग होता है उसके दो हिस्से होते हैं, लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन। जो आप यहाँ स्लाइड में देख सकते हैं, मेरा जो लेफ्ट ब्रेन है इस तरफ लेफ्ट पार्ट में, उसमें आपको केमिकल्स दिखेंगे, उसमें आपको मशीनरी दिखेगी, आपको जीन्स दिखेंगे, आपको एस्ट्रोनॉमी दिखेगी, आपको साइंस दिखेगा, आपको लॉजिक दिखेगा। सो लेफ्ट ब्रेन इज ऑल अबाउट लॉजिक, रीजनिंग, एनालिसिस, एंड right brain is for creativity, right brain is for music, right brain is for enjoyment, right brain is for painting colors. So it is the right brain which is creative, and it is the left brain which is reasoning, mathematics, which is totally basically a kind of mathematics analysis and all we all do in commerce also. It is about that, and right brain is creativity. So now the world is evolving towards righty education as compared to lefty education. This left Sorry to brain. disturb you, sir. Sorry to Pardon? interrupt you in between. सर जस्ट 1 मिनट के आप स्क्रीन शेयरिंग बंद करेंगे तो मैं एनोटेशन बंद कर देता हूँ. Yeah. सब स्टार्ट कर लीजिए. Yeah. Yes. Right. So now I believe the presentation is visible to you. Okay. Yes, sir. So, Yes, sir. so the world is moving from left education to the righty education. And this righty education is very important because it brings the creativity in you, it brings something new, developments, and that is very, very much for everybody in the world. You may see this is a diagram of left brain and right brain. Left brain has reason, logic, math, language, black and white vision, sense of time, and right brain is about art, music, colors, creativity, intuition, emotions. So now, earlier we used to talk about our IQ, intelligence quotient. Now the world has moved towards EQ, emotional quotient. So feelings and all those things which we used to ignore earlier now have become a very important part of our life. So it is not that we say our life is monotonous or our life is just about logics and maths. It's about creativity which will actually add value. So we may think which is the biggest, largest company in India. We all know India's largest company is Reliance. Reliance, what does Reliance do? Is Reliance also innovating? Do you think Reliance is innovating? Reliance was known for oil. In Jamnagar, they had the largest oil refinery in the world. But now they have launched a new product which is called Jio. But do you know how Jio has come? Can you see the slide? If you see oil was the product of Reliance, and if you see the mirror image of oil, it is Jio. So this is the way Jio has come. In his speech, Mr. Mukesh Ambani had said in the AGM that oil is old, data is the new oil. So data information is something on which the world is changing. So if Reliance is also evolving, if they are also innovating, we also must have to think, innovate. See, every person should sit for 5 minutes and think. We do monotonous things, we learn, we apply it, but how many of you sit and silently think? Because planning is very important concept of management, and planning presupposes a thinking activity.
So this thinking becomes very important. How many of you know this personality? This is Sadhguru Jaggi Vasudev. Somebody asked him that Sadhguru, in the future, we all see that now the world is moving towards artificial intelligence, robotics, machine learning. Do you think humans will become redundant? Humans will have no value because machines are taking over everything. Sadhguru said, machines are capable of doing learning. Machines can repetitively do things. They can apply things much, much better. So machines are wonderful slaves, but they cannot be masters. The more machines are there, they will help us, they will give us more idle time to think. So that is important. God has gifted us with the ability to think, and this ability makes us the master of all. So machines on one hand are wonderful slaves, they cannot be good masters, and it is only humans who have the ability to think, which makes us the master of the species. So this is important. And how many of us devote time on thinking? That is important today. We need to take is, if we don't think, if we become rigid to changes, we will perish. I have given you 3 examples here. You all can see Kodak. You know, Kodak was world's largest company with 90% market share in photographic films. Till 1980s, 90s, we all millennials are here. We all millennials could not have imagined that something, a day will come that Kodak will go, Kodak will become bankrupt. Why did this happen? Kodak did not see, Kodak had only one competitor, Yashica, which had around 8 to 10% of market share. They never imagined that somebody else can come. The technology can become their competitor. And then the age of digital cameras came, and this digital cameras totally perished. Now, who has seen this Kodak company? They all have perished, finished. Why? Because they did not see the future. They did not imagine that technology can make them obsolete to this extent. So you see the difference. Then comes, we all must have opened an account on Orkut. Orkut was Google's first social media network, but then it did not make changes. It did not innovate itself. It did not see what is in the mind of consumer. And we all know that Orkut has gone, Orkut has finished. It is finished by the new product, much better product, Facebook. We all must have accounts on Facebook. This program, I believe, is also getting live on Facebook. Facebook Live is there. So why Mark Zuckerberg, the owner of Facebook, has to spend millions and billions in acquiring Instagram? Facebook and Instagram both have similar features. Facebook is, interestingly, you can upload photos, you can upload videos. On Instagram also you can upload photos, you can upload videos. Then why Instagram was purchased by Facebook? Why did it happen? Because Facebook knows the importance of innovation. Facebook did a market survey, and then they came to know about Levi's effect. What is Levi's effect? Facebook ने देखा कि कभी भी 2 जनरेशन सेम प्लेटफॉर्म पे रहना पसंद नहीं करेगी. अगर बेटा और बाप 2 लोग हैं, अगर बाप फेसबुक के ऊपर है तो बेटा नहीं चाहेगा कि मैं अपने पिताजी जिस प्लेटफॉर्म पे है उसी प्लेटफॉर्म पे रहूं. So that is Levi's effect, generational gap, and because of that Instagram पे young generation मिलेगी, Facebook पे older generation मिलेगी. So Facebook realized that अभी मेरे पास जो कंज्यूमर बेस है वो एक लेवल का है, एक एज ग्रुप है, यंगर भी है, पर नई जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, they will not desire to be on the same platform that is used by their parents. And this Levi's effect was understood, and Instagram was acquired by Facebook so that they know they do not perish. Otherwise Facebook must have evaporated. पर Facebook भी चल रहा है क्योंकि उसने Instagram को भी acquire कर लिया, and now Facebook and Instagram are both enjoying the market. So this is important, Levi's effect. तो ये कैसे पता चला? मार्केट सर्च. तो हम केवल अपने प्रोडक्ट पे ध्यान दें, अपने ऊपर ध्यान दें, अपनी क्वालिटी पे ध्यान दें, पर वो जरूरी नहीं है.
मैंने एक बहुत ब्यूटीफुल बुक देखी, उस बुक के फर्स्ट पेज पे लिखा था अल्टीमेटली क्वालिटी सर्वाइव्स, अल्टीमेटली क्वालिटी प्रिवेल्स, क्वालिटी सर्वाइव्स। फिर मैंने उस बुक का सेकंड पेज पलटा और सेकंड पेज पे लिखा था दिस इज ऑल बुलशिट। So now in the future world, it is not that ultimately quality survives. Facebook may also have similar quality or better quality than Instagram, but it is the consumer's mindset which is much more important. Something maybe not that quality, have that quality, but if it is more appealable to those consumers, if it is acceptable to consumers, then that becomes very important. So it is, quality is important one way, but you all who desire to be an entrepreneur must think about the future and what is going to come in future and how things will evolve. What is the consumer's idea? What is the technology which is coming? How you can develop yourself? How you can be always adaptive? जो भी रिजिड रहे हैं, जो भी चेंज को लेके एवर्स रहे हैं, वो सब निपट गए। हमें चेंज को लेके बहुत अडेप्टिव होना चाहिए, हमें देखते रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए, हर जगह से सीखना चाहिए। हमारा इंडियन माइंडसेट, इंडियन माइथोलॉजी भी हमको हर चीज में से कुछ सीखने के एग्जाम्पल देती है। हम आगे डिस्कस करेंगे, कुछ बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल्स हैं। तो आपने देखा कोडेक वाज रिस्क एवर्स, निपट गया, ऑर्कुट खत्म हो गया, फेसबुक ने इंस्टाग्राम को अडॉप्ट कर लिया, तो फेसबुक, इंस्टाग्राम आज भी चल रहे हैं। तो आप जब तक एडेप्टिव रहेंगे, जब तक इनोवेटिव रहेंगे, आप सरवाइव करेंगे, आप रूल करेंगे। जिस दिन आप इनोवेशन को लेकर एवर्स हो गए, उस दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। आज का वर्ल्ड इतना तेजी से चेंज हो रहा है कि हम सोचते हैं उसके पहले चेंज आ जाता है। किसी ने कहा है कुछ इस तरह तेज हो गई है रफ्तार जिंदगी की, कुछ इस तरह तेज हो गई है रफ्तार जिंदगी की कि सुबह का दर्द शाम तक पुराना हो जाता है। तो इससे हमें पता चलता है कि किस तरीके से तेजी से चेंजेस आ रहे हैं। कैडबरी डेयरी मिल्क हम सब लोगों ने खाई है, पर मैं आपको बताऊं आज से 15 साल पहले कैडबरी डेयरी मिल्क बहुत कम लोग खाते थे। एक सुपर रिच क्लास थे, उनके घर के बच्चे खाते होंगे, या कुछ जो टॉप इंग्लिश मेंटेलिटी के थे वो लोग कैडबरी का डेयरी मिल्क प्रोडक्ट खाते थे। फिर बात चली, कैडबरी ने सोचा, कैडबरी ने एक इनोवेटिव टीम बैठाई। अब आप देखिएगा हाउ दे इम्प्लीमेंटेड, हाउ दे बिकेम इनोवेटिव। कैडबरी ने एक इनोवेटिव टीम बैठाई कि हमें अपना मार्केट शेयर बढ़ाना है, कैसे बढ़ाएं। तो उन्होंने एक मार्केट सर्वे किया, उन्होंने लोगों से जाना, सर्वे किए, क्वेश्चंस पूछे। उन्हें ये पता चला कि उनका क्वेश्चन ये था कि इंडियन सबसे ज्यादा खर्चा कब करते हैं। तो इंडियन सबसे ज्यादा खर्चा करते हैं त्योहारों के टाइम पे। तो उन्होंने कहा कि अगर हमें अपना मार्केट शेयर बढ़ाना है तो हमें त्योहारों में जाना पड़ेगा। तो उन्होंने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, कैडबरी सेलिब्रेशन, कुछ इस त्योहार कुछ मीठा हो जाए। उन्होंने ये कैंपेन चलाया। उन्होंने दिवाली पे जैसे हम पहले मिठाई देते थे, तो अब सेलिब्रेशन का चॉकलेट का पैक देने लगे। आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, कैडबरी डेयरी मिल्क का जो सेलिब्रेशन का पैक है, उसमें अगर 10 चॉकलेट्स हैं, वो 10 चॉकलेट आप अगर मार्केट से खरीदने जाओ अलग अलग, तो वो आपको अगर 100 रुपए की मिलेगी, तो सेलिब्रेशन का पैक अगर आप लोगे तो वो आपको 125-150 रुपए का मिलेगा। वो सारी चॉकलेट इकट्ठी अगर आप सेलिब्रेशन पैक में ले रहे हैं तो वो ज्यादा महंगी मिलेगी। ऐसा नहीं कि पैकिंग कॉस्ट है, इट इज बिकॉज दे नो कि व्हाट इज अपीलिंग टू द कंज्यूमर, व्हाट इज। त्योहार के टाइम पे आप मिठाई का डब्बा लोगे तो उसके रिप्लेसमेंट में ये चॉकलेट का डब्बा लेके जा सकते हो। तो इस तरीके से उन्होंने मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास में पेनिट्रेट किया अपना मार्केट शेयर इस इनोवेटिव स्ट्रेटेजी से। So innovation cannot be of product also, innovation can be of strategies also. This is a innovative marketing strategy. उन्होंने इस तरीके से मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास में आ गए, और ये कैंपेन चलाने के बाद कैडबरी की सेल्स 5 टाइम्स बढ़ी है, इट इंक्रीज बाय 5 टाइम्स। पर यहाँ कैडबरी रुकी नहीं। कैडबरी ने क्या किया, उन्होंने सोचा कि अब हम कहाँ बच गए। उन्होंने फिर मार्केट सर्वे करवाया और उन्हें ये पता चला कि अभी भी सैलरीड क्लास जो लोग हैं वो लोग कैडबरी का कंजम्पशन उतना नहीं कर रहे हैं, वो मार्केट अभी भी अनटैप्ड है। उन्होंने एक नया कंसेप्ट लेके आया, एक नया कैंपेन चलाया कि सैलरीड क्लास को सैलरी मिलती है 1 तारीख को, 1 तारीख को मिलती है। उन्होंने एक कैंपेन चलाया, खुश है जमाना आज 1 तारीख है, मीठा है खाना आज 1 तारीख है। ये कैंपेन इतना चला कि जब भी 1 तारीख आती, उस सैलरीड क्लास एम्प्लॉय का जो बच्चा रहता वो पापा से बोलता, पापा आज 1 तारीख है, चॉकलेट लाए हो।
तो एक कस्टम चालू हो गया सैलरीड क्लास के अंदर भी कि पहली तारीख है तो बच्चों के लिए चॉकलेट लेके जाएंगे हम। और इस तरीके से उन्होंने वो मार्केट टैप किया जो उनके लिए टोटली अनटैप था, एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। आज कोई भी और चॉकलेट का उतना बड़ा मार्केट शेयर नहीं है जो कैडबरी का है। क्यों? क्योंकि उनकी कंटिन्यूअस मार्केट स्ट्रेटेजी इनोवेट हो रही है। आज ही सुबह मैंने अपना मेल अकाउंट खोला तो उसमें आया कि इस त्योहार वापस कुछ मीठा हो जाए, कैडबरी की एडवर्टाइजमेंट मुझे अपने मेल वो टीवी की एडवर्टाइजमेंट अब लोग कम देख रहे हैं, आजकल लोग अपना मेल ज्यादा देखते हैं, तो उन्होंने ईमेल के थ्रू एडवर्टाइजमेंट चालू कर दिया। आप देखिए अब नेटफ्लिक्स और वेब मीडिया के, आज वेब सीरीज के जमाने में जब टीवी देखना कम हो गया है तो उन्होंने अपने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को चेंज करके इस तरीके से लेके आ गए। तो वी शुड हैव इनोवेटिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज ऑल्सो। और एक बार हम सक्सेस हो गए, मेरी सेल 5 गुना हो गई, तो मैं वही हो जाऊं कि बस मैंने सब कुछ अचीव कर लिया, अब इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। दिस इज ऑल्सो लेसन टू बी लर्न फ्रॉम कैडबरी कि उनकी सेल 5 गुना होने के बाद उन्होंने देखा कि अब कहाँ स्कोप है और फिर एग्रेसिवली उस मार्केट को टैप किया। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेसन, यू शुड बी कंटिन्यूअसली इवॉल्विंग, कहीं पे रुक नहीं जाना है हमें। देन आप सब ये देख सकते हैं पहले और दूसरे में क्या अंतर है। पहला कौन है और दूसरा कौन है? अनुज सर आप रीड कर सकते हैं, पहले और दूसरे में क्या डिफरेंस है? Yes, sir. First is Amitabh, then Amitabh. Amitabh. अमिताभ, कि अमिताभ First जो is है, अमिताभ क्या था तो एंग्री यंग मैन के नाम से जाना जाता था। जी, जब जी। अमिताभ बच्चन आया, ही वॉज नोन एज एंग्री यंग मैन। अमिताभ बच्चन ने जबरदस्त फिल्म करी, वो सुपर सक्सेसफुल, सदी का महानायक था, पर 90s में जाके वो फेल होने लगा अपनी एंग्री यंग मैन की इमेज के कारण। उसकी खुदा गवाह पिक्चर के बाद ही बिकेम ऑलमोस्ट बैंकरप्ट। उसके बाद आप देखिए इस आदमी की जीजी विशा, इस सदी के महानायक ने जब उसका कमबैक किया कौन बनेगा करोड़पति के साथ में, और अमित अब फिल्म करता है जिसमें अपने बेटे का रोल कर रहा है वो। 102 नॉट आउट जिसमें ऋषि कपूर के फादर का रोल कर रहा है वो। ब्लैक मूवी आप सबने देखी होगी। इस तरीके से नाउ ही इज वेरी मच अडेप्टिव। उन्हें किसी भी टाइप का आप रोल लेके चले जाइए, वो ये रोल कर रहे हैं, वो अपने आप में अडेप्टिव है। वो अपनी जो एंग्री यंग मैन की इमेज थी, विजय दीनानाथ चौहान, उस इमेज को तोड़ के आज अमिताभ को जो हम जानते हैं, आज की जनरेशन अमिताभ को एंग्री यंग मैन के नाम से नहीं जानती। आज की जनरेशन अमिताभ को उसके जो डिफरेंट रोल्स हैं, वर्सेटाइल रोल्स हैं, एक खुश मिजाज आदमी की तरफ जानती है। वो एंग्री यंग मैन की जो उसकी खुद की इमेज थी उसको उसने तोड़ दिया। हम सबको भी यही करना है कि हमारा जो कंफर्ट लेवल है, हम अपने कंफर्ट लेवल से आप बाहर नहीं आ पाते हैं। हम किसी चीज में एक्सपर्ट हैं तो हम अपने कंफर्ट लेवल को बाहर आए, उसको तोड़ें और अपने आप को डेवलप करें। आप सब लोग अमूल को जानते होंगे। अमूल किस लिए फेमस है? अमूल का सबसे फेमस प्रोडक्ट क्या है? अमूल का सबसे फेमस प्रोडक्ट है अमूल बटर। अमूल बटर इज वेरी मच फेमस और उसका सबसे बड़ा मार्केट शेयर था। अमूल ने उसके डेयरी प्रोडक्ट लॉन्च किए, जैसे अमूल छाछ, अमूल मिल्क और बहुत सारी चीजें लॉन्च की। फिर एक टाइम आया जब अमूल को दूध की शॉर्टेज होने लगी और उसके बाद में चॉइस थी कि वो ये जो प्रोडक्ट नए लॉन्च करें, या तो इनको डिसकंटिन्यू कर दें और केवल या तो पुराने प्रोडक्ट रखें या नए रखें। हम में से कोई भी होता तो जो हमारा मेजर मार्केट शेयर है प्रॉफिट गिविंग अमूल बटर, उसको बंद करता। पर अमूल ने कहा नहीं। अमूल बटर जो उसका मेन मार्केट शेयर लीडर था उसको बंद किया और अमूल ने अपने दूसरे नए प्रोडक्ट को कंटिन्यू किया क्योंकि उसका मार्केट अभी एस्टेब्लिश हो रहा था। और जब वापस चीजें हुई तो लोग अमूल बटर को क्रेव कर रहे थे और वापस जब दूध की स्टेबिलिटी हुई तो साल 2 साल बाद अमूल बटर वापस आया। लोगों ने वापस उसका वही मार्केट शेयर हो गया क्योंकि अमूल को मालूम था ये नए प्रोडक्ट मैंने जितना खर्चा किया पूरा वेस्ट हो जाएगा। अमूल बटर मेरा एस्टेब्लिश प्रोडक्ट है और उसके अंदर कोई नया आ भी गया तो उसको रिप्लेस नहीं कर सकता। तो दिस इज अगेन अ डिफरेंट स्ट्रेटजी कि हम लोगों में से सब लोग नॉर्मल जो सोचते हैं कि ये मेरा कंफर्ट लेवल है, मैं इसमें रहूं और जो चीजों में वीक हूं उसको छोड़ दूं, पर नहीं, हमें अपने कंफर्ट लेवल को भी तोड़ना पड़ेगा। एंड एवरी स्ट्रेटजी इज डिफरेंट फॉर एवरी पर्सन। हर व्यक्ति की अपनी डिफरेंट स्ट्रेटेजी होगी, इसलिए कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। बस हमें अपने आप को सोचना है और करना है। अब ये देखें आप सब लोग ये 4 एक्ट्रेसेस को देख सकते हैं।
आपको पता है 1980s के अंदर, 1990s के अंदर जीन्स का मतलब क्या होता था? डेनिम। तो उसमें केवल एक ब्लू कलर की जीन्स आती थी, ब्लू कलर की डेनिम सेम आती थी। अब लोगों ने ब्लू डेनिम पहनना एक स्टेटस सिंबल था। फिर धीरे धीरे जीन्स का मार्केट बढ़ा तो हर कोई ब्लू जीन्स पहनने लगा। जब हर कोई ब्लू जीन्स पहनने लगा तो फिर जीन्स ने एक इनोवेशन किया, उसने लाइट जीन्स और डार्क ब्लू जीन्स लेके आए। जब वो भी हो गया, लाइट जीन्स, डार्क ब्लू जीन्स, फिर लोगों ने बोला कि नहीं, हमको कॉमन नहीं पहनना है। एक चीज हमेशा इंपॉर्टेंट है, मैंने मेरी वाइफ श्रेया से एक चीज देखी, हम दोनों शॉपिंग पे गए थे, एक कुर्ता मुझे बहुत पसंद आया, उसने बोला नहीं नहीं ये तो बहुत कॉमन है, ये बहुत कॉमन है, ये मेरे को नहीं चाहिए। तो मुझे पता चला कि एक ह्यूमन माइंडसेट ये भी है फीमेल के अंदर कि कॉमन चीज हमें नहीं पहननी है। बोला ठीक है चलो गुड। तो फिर मैंने देखा कि ये जो डेनिम है, लोगों को अब जीन्स सब पहन रहे तो मुझे कुछ नया करना है। तो फिर जीन्स ने, डेनिम ने इनोवेट किया कि पहले डार्क जीन्स, लाइट ब्लू जीन्स, फिर वो गए कि चलो ये सब पहन रहे, एसिड वॉश, स्टोन वॉश, वो भी हो गया। पर किसने इमेजिन किया कि इसके बाद रग्ड जीन्स, फटी हुई जीन्स। आप देखिए अब इसके अंदर कि ये 4 इंडिया की टॉप एक्ट्रेसेस हैं और इन्होंने रग्ड जीन्स पहन रखी है। तो ये अपने आप में फैशन है। अब कोई भी पुराने व्यक्ति से आप पूछो कि फटी हुई जीन्स क्या एक नया फैशन हो सकती है? क्या आपकी जीन्स, फटी हुई जीन्स भी नॉर्मल पूरी अच्छी जीन्स से ज्यादा कीमत पे बिक सकती है? तो नहीं। पर ये क्यों हुआ? क्योंकि इट इज नॉट द क्वालिटी विच अल्टीमेटली प्रिवेल्स, इट इज हाउ यू एंटर द माइंड ऑफ योर कंज्यूमर, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। आप देखें सबने फटी हुई जीन्स पहनी है और ये एक एक फटी हुई जीन्स जो है हजारों रुपए की होगी। क्यों? इसको फाड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, वो चीज नहीं है, पर इट इज द माइंडसेट विच अपील्स। तो जीन्स ने भी अपने आप को केवल ब्लू जीन्स से आज इतनी वेराइटीज बना दी। पर ये क्या है सब? दिस इज ऑल इनोवेशन, इट इज कंटिन्यूअसली इवॉल्विंग। हो सकता है ट्रेंड वापस आ जाए कि अब पूरी सिली हुई जीन्स पहनने का, या भी नेवर नो कहां तक ये ट्रेंड जा सकता है। तो इनोवेशन इज समथिंग विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये आप देख सकते हैं। अब हम बात करें अपने घर की, ये आप इसको देख के क्या पहचानेंगे? इसको देख के पहला विचार क्या आता है आपके दिमाग के अंदर? मैं थोड़ा इंटरेक्टिव चाहूंगा, क्या कोई बता सकता है इसको देख के सबसे पहला विचार क्या आता है? अनुज जी। सर, कृष्ण भगवान का मोर पंख। यस। अब मोर पंख कृष्ण भगवान की याद कैसे आई? क्योंकि हमारे कृष्ण जी जो कहते हैं वो भी इनोवेटिव थे। जब लोग अलग अलग टाइप की पगड़ियां पहनते थे तो कृष्ण जी ने मोर पंख ही चुना, क्योंकि ये कोई भी यूज नहीं करता था। वाई? बिकॉज ही वॉज ऑल्सो इनोवेटिव। उन्होंने इनोवेट किया, उन्होंने मोर पंख को यूज किया, और आज 5000 साल बाद भी मोर पंख इज रिजेंबलिंग कृष्ण, क्योंकि कृष्ण ने अपने आप को इनोवेट करके मोर पंख से जोड़ लिया। तो मोर पंख और कृष्ण सिनोनिम हो गए। उन्होंने, जब लोग अलग अलग चीजें यूज करते थे, कृष्ण ने जो है बांसुरी यूज करी, तो आज बांसुरी कृष्ण के नाम से जानी जाती है और कृष्ण बांसुरी के नाम से जाने जाते हैं। तो हमारा हिस्ट्री राइट ही बेस्ड था, हमारा एजुकेशन सिस्टम राइट ब्रेन बेस्ड था, इट वाज ऑलवेज क्रिएटिव। कृष्ण जब 5000 पहले कुछ क्रिएटिव हटके नया करने का सोच सकते हैं, एक नया मोरपंख अपने मुकुट बनाने का सोच सकते हैं, उन्होंने सोना चांदी हीरे का नहीं सोचा, क्योंकि हीरे का मुकुट पहनने वाले भी बहुत थे, सोने का मुकुट पहनने वाले भी बहुत थे, पर मोर का मुकुट पहनने वाला कोई नहीं था। सो ऑलवेज यू आर डिफरेंट और एवरी ह्यूमन बीइंग इज मेड डिफरेंट बाय द गॉड। तो व्हाई शुड वी, हम भेड़ चाल में क्यों चलें? अपना कुछ नया क्यों ना सोचें? इसके बाद अगेन हमारा जो गुरुकुल सिस्टम था, एजुकेशन सिस्टम था, वो राइटी बेस्ड था। ये इससे पता चलेगा। हु आर दिस? हम सब जानते हैं 5 पांडव। पांचों पांडव ने सेम अस्त्र क्यों नहीं चूज किया? युधिष्ठिर ने भाला, अर्जुन ने धनुष, भीम ने गदा, खड़ग, तलवार, तो सबने एक ही चीज क्यों नहीं यूज करी? बिकॉज एवरीबडी वॉज इनोवेटिव। हम सब सेम चीज यूज करेंगे तो कैसे होगा? तो हर एक ने अपना इनोवेटिव अस्त्र यूज किया। ऐसा नहीं कि सब लोग धनुष बाण ले लो। हमारे भीष्म पितामह दादा जो है वो एक्सपर्ट है, उसमें एक साथ हजारों तीर चल जाते हैं, गदा तो एक ही चलेगा। तो मैं गदा, हम सब धनुष बाण क्यों ना यूज करें? बिकॉज दे वर इनोवेटिव। बाहुबली मूवी आपने देखा है कि वो लोग जो है पुराने अस्त्र शस्त्र चला रहे थे। बाहुबली जो कटप्पा जो कालके से युद्ध जीता, तो उसने कपड़ों को बांधा, उसको तेल में डुबो के उसको दूर छोड़ा और उसको आग लगा दी। तो दैट वाज इनोवेशन। लड़ाई क्यों जीते? क्योंकि इनोवेशन किया। तो दुनिया में, जिंदगी में हर तरफ इनोवेशन है, और इनोवेशन नहीं होगा तो लोग इवोपरेट हो जाएंगे। पल्स,
जब पल्स कैंडी बनाने की शुरुआत हुई, लोगों एक मार्केट सर्वे करवाया, तो लोगों का ये देखा कि लोग अलग अलग फ्लेवर की जो कैंडी है वो खाते हैं, तो उसने सोचा क्यों ना हम इसको एक कर दें। ये एक नया क्रिएट, आई एम ऑडिबल? हेलो? यस सर, हाँ, ऑडिबल। पल्स केम आउट विद दिस इनोवेटिव कैंडी की बाहर अलग फ्लेवर, अंदर कुछ अलग फ्लेवर, एंड यू वोंट बिलीव ये इनोवेशन स्ट्रेटेजी ने पल्स को इतना सेल्स बूस्ट दिया, इतना सेल्स बूस्ट दिया कि उसने कोका कोला का रिकॉर्ड तोड़ दिया। कैन यू इमेजिन? पल्स ने कोका कोला का रिकॉर्ड तोड़ दिया क्योंकि वो एक नया कैंडी लेके आया। अब इंडिया में कैंडी मार्केट इतना पुराना है, उन्होंने देखा कि सबसे ज्यादा CAGR जो रेशियो है, सबसे ज्यादा ग्रोथ जो है वो कैंडी मार्केट में हो रही है, तो वो एक नया मॉडल लेके आए। उन्होंने उसी कैंडी मार्केट जिसमें ग्रोथ का स्कोप था, वो एक पल्स का मॉडल लेके आए, इनोवेटिव स्ट्रेटेजी करी, और कोका कोला का रिकॉर्ड अगर उन्होंने तोड़ दिया तो दिस शोज द इंपॉर्टेंस ऑफ इनोवेशन। नहीं तो कैंडी चॉकलेट हमारे यहाँ इंदौर तो मार्केट इसमें किंग है, घर घर में हो रहा है, पर गुजरात के एक एंटरप्रेन्योर ने जब ये पल्स का मॉडल लेके आया तो दे कुड बिकम द बेस्ट। देन मूविंग अहेड, जब ये मिकी माउस कार्टून वॉल्ट डिज्नी ने बनाया था तो लोगों ने बोला था ये तो पागल है, यू आर अ फूल, ये कहाँ चलेगा, कौन ऐसी ये चीजें देखेगा। आप अच्छी चीजें, उस समय तो फिल्में बनना शुरू हुई थी, बोले इतना बड़ा मार्केट छोड़ के आप ये कर रहे हो, टॉम एंड जेरी मिकी माउस बना रहे हो। बट रेस्ट इज हिस्ट्री। वॉल्ट डिज्नी बिकेम अ हॉलीवुड जायंट जस्ट बिकॉज ऑफ हिज इनोवेशन। उसने ऐसा सोचा कि ये चीज भी हो सकती है, तो हमें सोचना है क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, एंड देन थिंग्स रिमेन। मतलब हमें जो लगता है कि वो नहीं हो सकता, सबसे पहले वो करके देखें। हम अपने जो दिमाग के अंदर जाले बना लेते हैं, प्री कंसीव नोशन, कि यार ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है, उन जालों को दूर करें, सोचें और आउट ऑफ द बॉक्स सोचें। हमेशा जो एक सीधी धारा में सोचते हैं तो वो हमारा इंडियन माइंडसेट नहीं है। हमने देखा 5000 साल पहले कृष्ण मोर मुकुट को चूज कर सकते हैं, सारे पांडव अलग अलग अस्त्रों को चूज कर सकते हैं, तो दैट शोज कि हमारे ब्लड के अंदर इनोवेशन पहले से ही है। ये आज का हमारा 200 साल का जो एजुकेशन सिस्टम है उसने हमारे दिमाग को जंग लगा दिया, सोचने की शक्ति को इम्पेयर कर दिया है। तो हमें वापस अपने राइटी ब्रेन को एक्टिवेट करना पड़ेगा, क्रिएटिविटी को एक्टिवेट करना पड़ेगा, क्योंकि बिना क्रिएटिविटी के कुछ भी नहीं होगा। हमें देखना है अनसेटिस्फाइड मार्केट क्या होता है। एक अनसेटिस्फाइड मार्केट को पहचानना पड़ेगा। अलीबाबा जो चाइना का एक बहुत बड़ा जायंट है, उनके जो मैनेजमेंट गुरु थे, उन्होंने एक कंसेप्ट दिया था अनसेटिस्फाइड मार्केट का। हमें देखना है कहाँ अनसेटिस्फाइड मार्केट है। ब्लैकबेरी, BBM हम सब जानते हैं। ब्लैकबेरी ने एक सिस्टम निकाला था BBM, जो मैसेंजर सिस्टम था कि केवल एक ब्लैकबेरी वाला ही दूसरे ब्लैकबेरी को भेज सकता है। तो जितने लोगों के पास ब्लैकबेरी था वो सब फूल जाते थे खुशी के मारे कि अरे, दे यूज्ड टू बोस्ट कि हमारा BBM यूज करता हूँ। तेरे पास BBM नहीं है, वो हीन दृष्टि से देखते थे। तो वो एक हीन दृष्टि से देखते थे, इसने एक बहुत बड़ा अनसेटिस्फाइड मार्केट क्रिएट कर लिया। लोग सोचने लगे यार ब्लैकबेरी लूं मैं तो, ब्लैकबेरी ब्लैकबेरी ऐसा चलने लग गया था। लोगों की इस प्रॉब्लम को पहचाना एक कंपनी ने और अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया, जो प्रोडक्ट $90 बिलियन में बिका है। क्या आप सोच सकते हैं, आप बता सकते हैं क्या है वो? दैट इज व्हाट्सएप। व्हाट्सएप का आइडिया था अनसेटिस्फाइड मार्केट, जो ब्लैकबेरी ने क्रिएट किया था BBM ने। और अब आज आप देख सकते हैं व्हाट्सएप क्या हो गया है। व्हाट्सएप एक आइडिया आया एक अनसेटिस्फाइड मार्केट से, एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से, और उसने सारे जहां को चेंज कर दिया। मैं लेटेस्ट एग्जांपल लूंगा, बुरहानपुर करके एक जगह है MP के अंदर, जहां पावर लूम बहुत फेमस है। जहां से अभी जब कोविड चालू हुआ तो पावर लूम सब बंद हो गए। लोगों ने कपड़े नए पहनने की जरूरत नहीं, लोग सब टी-शर्ट और बरमूडा में घूमते रहते थे घर में। तो लोगों ने सोचा कि यार क्या होगा क्या होगा, पावर लूम बंद होने की कगार में आ गए कुछ। उसमें एक मजदूर को आइडिया आया, उसने मास्क देखे और उसने जो लूम का कपड़ा है उसका मास्क बनाया। और फिर लूम के कपड़े के जो कॉटन के मास्क हैं वो इतने फेमस हो गए कि उस इंडस्ट्री को एक नया मार्केट मिल गया अपने आप में। उसका पुराना मार्केट बंद हुआ नहीं हुआ, पर उनको एक नया मार्केट बन गया। लोगों को मास्क पहनने में जो प्रॉब्लम आने लगी तो कॉटन के लूम के कपड़े के लोगों ने मास्क बनाना शुरू कर दिया और एक अपने आप में नया मार्केट डेवलप हो गया। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को अगर नुकसान हुआ तो N95,
और ऐसे कपड़े के मास्क बनाने का एक नया मार्केट भी मिला है। तो ऐसा नहीं है, अगर एक दरवाजा बंद होता है तो 4 दरवाजे खुलते हैं, हमें ये पॉजिटिविटी रखनी पड़ेगी हमेशा। अदरवाइज हम लोग अगर पॉजिटिव एटीट्यूड ही छोड़ देंगे तो फिर हमारा सर्वाइव करना बंद है। हमें हमेशा याद रखना है कि ऊपर वाले ने एक दरवाजा बंद किया है तो वो हमारे अच्छे के लिए हमारे लिए 4 दरवाजे खोले हैं। अगर हमें कुछ बहुत अच्छी इजी इनकम आ रही है तो वो हमेशा कभी भी हमारे लिए अच्छा नहीं है, इट इज ऑलवेज बैड। हमें अपनी पूरी शक्ति, हमारे अंदर असीम शक्ति भरी हुई है, केवल हमें उसे लगाना है। जब तक हम अपना बेस्ट नहीं करेंगे तब तक हमें भी मजा नहीं आएगा और हम अपने असली पोटेंशियल को बाहर नहीं लेके आ सकते। पहले लोग बोलते थे कि बिजनेस करने के लिए लाखों करोड़ों की जरूरत है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लगेगा, प्रॉपर्टी लगेगी। ये उबर और ओला ने इसको खत्म कर दिया। उन्होंने केवल एक सॉफ्टवेयर का प्लेटफॉर्म बनाया, अपनी एक भी गाड़ी नहीं खरीदी और आज सबसे बड़ा जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो उबर और ओला है। तो उबर और ओला ने सोचा कि हम ये करें और आज आप हिस्ट्री देख सकते हैं। तो बिजनेस के लिए जरूरी नहीं है कि आपको पैसे की जरूरत हो, आपको कपड़ा बेचना है तो जरूरी नहीं कि आपकी राजवाड़ा पे ही दुकान हो। अमेजोन को देखिए, आज अमेजोन, जेफ बेजोस वर्ल्ड का सबसे रईस आदमी क्यों बन गया है? अमेजोन की एक भी दुकान नहीं है कहीं भी मार्केट के अंदर, अमेजोन की एक भी सिंगल दुकान नहीं है, और उसने एक नए तरीके से अपना प्रोडक्ट बेचना सोचा और आप देख सकते हैं क्या वंडर्स है। तो पहले राजवाड़ा पे चौक पे हमारी दुकान हो, वो सब चीजें खत्म हो गई हैं। चीज क्या है? जस्ट इनोवेट, सोचो, नया करो, तभी हम लोग सक्सेसफुल हो पाएंगे, तभी हम लोग कर पाएंगे। इनोवेशन केवल आइडिया 1% रहता है, 99% एफर्ट उसके एग्जीक्यूशन में लगते हैं। तो वो 1% के लिए हमें टाइम देना है, सोचना है, और हम सोच तभी पाएंगे जब हम शांति से बैठ के सारे विचारों को छोड़ के मेडिटेट करके बैठेंगे, आसपास देखेंगे, हमेशा हमारी आंखें खुली रखें, हम देखें कहाँ क्या हो रहा है। लोगों से बात कर रहे हैं तो उनसे समझें कि लोगों की मेंटेलिटी किस तरफ जा रही है। अपनी वाइफ के साथ अगर आप शॉपिंग पे जा रहे हैं तो उससे भी शायद आप बहुत कुछ जान और सीख सकेंगे। यहाँ पर कई जो नए बच्चे हैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शॉपिंग पे जाएंगे तो अपनी गर्लफ्रेंड से सीखें कि यार वो कहाँ जा रही है, उसकी क्या सोच है, तो उनको पता चल जाएगा कि नई जनरेशन में असली स्कोप कहाँ पर है। तो हमें अपना कंफर्ट लेवल तोड़ना है और आगे बढ़ना है। आज की हमारी मीटिंग इस जूम सॉफ्टवेयर के थ्रू थी। हम सब नहीं जानते थे जूम क्या है और आज हम सब इस जूम सॉफ्टवेयर के ऊपर हैं। तो हम लोग जो लास्ट स्लाइड बनाते थे अपने प्रेजेंटेशन की, वो थैंक यू की बनाते थे, पर मैंने भी सोचा अगर मैं इनोवेशन का लेक्चर दे रहा हूँ और मैं वही घिसी पिटी थैंक यू की स्लाइड बनाऊंगा तो शायद सही नहीं रहेगा। इसलिए मैंने अपनी एंडिंग जो करी है थोड़ी सी इनोवेटिव कर दी। थैंक यू नहीं बोलना चाहूंगा मैं आपको कहना चाहूंगा थैंक यू। अब आप सब सोचना शुरू करें, क्योंकि जब सोचेंगे तभी हम सब कुछ बदल पाएंगे, तभी दुनिया बदल पाएंगे। हम एक नई दुनिया में एंटर कर रहे हैं। अब इस दुनिया में कोई भी नहीं बोल सकता कि यार मुझे प्रॉब्लम है, सबको प्रॉब्लम थी। कोविड ने सबकी दुनिया लाइफ सब कुछ चेंज कर दिया है। पुरानी चीजें जरूरी नहीं अब चलेगी, सब नई चीजें आएगी, नई चीज लानी है, बदलाव हमें लाना है। यूरोप के अंदर, वही यूरोप जो आज डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं, एक समय इंडिया से बहुत पिछड़ा हुआ था, तब उसको डार्क एज कहते थे और उसमें बदलाव आया रेनेसेंस। 1500 ईस्वी सन 1500 में बदलाव आया जिसको रेनेसेंस एज कहते हैं। वो तब आया जब लोगों ने प्रश्न पूछना शुरू किया, क्वेश्चन पूछना शुरू किया, और तब बदलाव आया और आज हम डेवलपमेंट देख सकते हैं। तो सोचिए, पूछिए, जानिए, शर्माइए मत और दुनिया को बदलिए। तो विद दिस मैसेज आई वुड लाइक टू थैंक Vishishta School of Management for giving this opportunity to me to interact with the budding minds, to the future entrepreneurs. Best of luck to all of you for the times to come. Thank you very much. Thank you so much, sir. Anyone have any question? They can unmute themselves or write in a chat box. Any student want to ask any question? Yes, ma'am. I want to ask. Sure. First of all, good morning, everyone, and good morning, Professor. Sir, my question is that you have talked about many more marketing strategies right now in your lecture. So, sir, we can't say that the rivalry one
the rivalry marketing strategies like Pepsi, Coca-Cola one. So that is also very good marketing strategy. What would be your topic on it, or what you want to say in it? On one hand, when marketing strategies are important, Pepsi, Coca-Cola have a brand, Lay's. They are into wafer industry, but Yes, then sir. ITC and Procter and Gamble, all these are MNCs, Hindustan Lever. But then marketing strategies can be Yes, sir. homebound also. आप देख सकते हैं बाबा रामदेव, उन्होंने जिस तरीके से पतंजलि को बनाया, बालाजी चिप्स, हम सब लोग जानते हैं बालाजी चिप्स की एडवर्टाइजमेंट आपको देखने नहीं मिलेगी, बट बालाजी चिप्स डिवाइस a different strategy for their marketing. हमें मालूम था लेज की चिप्स जब हम खाते थे तो शुरू करते ही खत्म हो जाती थी, उसके साथ में जो अनसेटिस्फाइड कस्टमर था, अनसेटिस्फाइड मार्केट था, तो बालाजी चिप्स ने एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट करते हुए क्वांटिटी ज्यादा देना शुरू करी, और दैट वाज देयर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी. सो इट इज ऑल पर्सनलाइज. हर एक को सोचना है कि व्हाट इज द डिससेटिस्फेक्शन इन द माइंड ऑफ कंज्यूमर, और उस डिससेटिस्फेक्शन को हमको टैप करना है. बाबा रामदेव ने जिस तरीके से, हर आदमी चाहता था, हर आदमी को मालूम है कि यार फॉरेन मल्टीनेशनल्स हैं, पैसा बाहर जा रहा है देश का, तो उन्होंने एक अलग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज करी, और आप देख सकते हैं पतंजलि हैज नाउ ग्रोन इनटू अ मल्टी बिलियनियर एंटरप्राइज. So it is all marketing strategies are also different. It is innovation can be of marketing strategy, innovation can be of the product, innovation can be in any sphere, anywhere. Amul is best known for its marketing strategies. अमूल की टीवी पे एक सबसे बढ़िया एग्जांपल और देना मैं चाहूंगा आपको. जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो मेरे क्लाइंट के पास में फोन आया, वो दूरदर्शन पे एडवर्टाइजमेंट देते थे, उनके पास फोन आया कि हम रामायण सीरियल फिर से शुरू कर रहे हैं, तो आप एडवर्टाइजमेंट देना चाहोगे कि नहीं. उन्होंने सोचा यार कि चलो रामायण शुरू हो रही है, लोगों को अच्छा होगा, दूरदर्शन कोई नहीं देखता, फिर भी मैं दे देता हूँ एडवर्टाइजमेंट. तो उन्होंने एक स्लॉट बुक कर दिया 40,000 रुपए पर सेकंड के अंदर. उन्होंने बुक किया, उसके बाद रामायण की टीआरपी इतनी बढ़ गई कि वही जो स्लॉट था जो उन्होंने 40,000 में बुक किया, वही स्लॉट फिर 4 लाख रुपए पर सेकंड का हो गया. 10 टाइम्स कॉस्ट इंक्रीज हो गई. सो इट इज ऑल की इनोवेशन, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, कौन सी चीज कब चल जाए. मोदी जी की ये इनोवेशन स्ट्रेटेजी देख लीजिए कि रामायण सीरियल जो हम सबों ने कईयों बार देख रखा है, कोई पुरानी पिक्चर दूसरी बार नहीं देखता, तो रामायण सीरियल दूसरी बार कौन देखेगा. बट नहीं, वही पुराना रामायण और महाभारत सीरियल अब जितने लोगों ने देखा, शायद उतने लोगों ने पहले भी नहीं देखा होगा. उसकी टीआरपी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए दूरदर्शन की. कौन सोच सकता था कि दूरदर्शन भी लोग वापस देखना शुरू कर सकते हैं. सो इट इज ऑल अबाउट इनोवेटिव. किसी ने सोचा कि नहीं प्रसार भारती पे वापस वही सीरियल हम लॉन्च करेंगे, पुराना सीरियल ऐसे चैनल पे जो कोई नहीं देखता, और फिर भी सक्सेसफुल हो गया. सो इट इज इनोवेशन. So innovation is there in every sphere of our life. So we all should innovate, think and do. Rest will be wonders. Right? So one more question. Thank you very much, sir, Yes, for yes. this opportunity. I have a meeting to attend from 10:30. So if we have another short question, I can take that. And then I would like to apologize for the... Sir, yes, of course, sir. Sir, what would be your views on digital marketing and digital network marketing? Hello. Yes, sir, am I audible? Hello. Yeah, please tell me. Sir, what would be your views on digital marketing and digital network marketing? You are not clearly audible, sir. Akshanshi. Sir, Yeah. your views on digital marketing. What are your views on digital marketing? Digital marketing is also very good and innovative concept, but you need to see your target consumer. It will be very focused in the future. As I said, the future oil is data, information, and all this Facebook and all those companies are tracking every moment of you. If you are scrolling Facebook and if you are there on a particular image or video for more than 2 seconds, 5 seconds, then it records what is your interest and then uses. But it is all important that digital marketing for what product you want to do and what is your consumer base. For younger generation, definitely digital is important. Okay, sir. For an older generation, it may not be that useful. So what is your product? You need to think who is your consumer, what is your product, and is it available on that platform.
So it will all be depending on your Okay. product, your target consumer. Digital marketing is a wonderful concept, but then it would depend on consumer to consumer and case to case. Okay. Anything, Thank rather you, I sir. would say leave apart digital marketing. Any kind of marketing is not bad, but everything, there is a different medicine for different problem, for different disease. So therefore there is a different marketing technique. No marketing technique is useless. Even you considered as useless marketing technique may also bring in wonders to any product success. So everything is useful. It is just the right place, right strategy. Thank you, sir. Very First of all, thank you so much for such an insightful discussion. So my question is it right to say that left-handed person are more gifted or more successful than right-handed person? If yes, then should we motivate our children to more often use their left hand for daily working? Everybody has a left and right brain both. So it is Right. just the way approach how we think and take things. We are trained to only use our left brain when your organization will start, will pioneer in preaching, teaching people to be creative, to use your right brain. Everybody is having a right brain. It is not that somebody is lefty or righty. Everybody has a right brain. It is just the approach. It is the idea which you may create, that use your right brain. When you will train to students to use their right brain to be creative, they all will do wonders, I would say. So it is not Alright. that somebody, see, it is a combination of everything which makes a person successful, super successful. So it is all about how you are trained to use both the things. It is not that somebody is gifted and somebody is not gifted. Every human being in this world is a gift of God to the earth. So everybody is gifted, I would say, rather. Yeah, so sir, is there any particular kind of training to make our brains work in combination? Yes, there are different kind of trainings. You make students think. It is just that you give assignments, you give problems to let them think. If you see the education IITs and IIMs, their more focus is on radical thinking to make them think out of the box. It is the lateral thinking which is important. Even from movies which we see, they also show many examples of lateral thinking, from out of the box thinking. All those jokes which we read on IAS questions are example of out of box thinking. So it is, I would suggest there are many modules also on this. So your organization may uh, uh, devise those kind of faculties, train those faculties to give thoughts to students to do this radical thinking. Right, sir? Yeah. Thank you very much. Thank you so much, sir. It would be really helpful. Thank you again. Yeah. Any other? Aditya, ma'am, please move forward. As there's a short of time with Pankaj sir, because there's another meeting scheduled of Pankaj sir. So now I request Professor Robin Nima to present a certificate of appreciation. Pankaj sir. Thank you, sir. थैंक यू सो मच सर। My pleasure, ma'am. आप इतने बिजी शेड्यूल में भी हमारे लिए टाइम निकाल लेते हैं, और फॉर सच अ वंडरफुल एंड एनर्जेटिक सेशन, and thank you so much sir for joining with us. And I would also like to thank our managing director and director sir for organizing such a wonderful SVP for students, so they can have life experience and they can add their knowledge. Thank you so much everyone. Thank you. Students, Thank thank you so much Pankaj sir for joining with us. Thank you so much, sir, for a wonderful session. Thank you. Would like to Thank you hear so much from पंकज सर। और आज टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं पूरी बात नहीं इतना अच्छा सुन पा रहे हैं। शायद हमको एक सेशन इसी टॉपिक पे फिर से ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। We love to listen more on example based this kind of discussions. But again, I'm humbly thanks and gratitude on behalf of entire Research family. Thank you so much, sir.
Thank you. Bye. Okay, I'll take it. A small announcement for the students. Your online classes will start from 27, and timing for the classes will be 9:15 onwards, and a timetable will be shared in the respective group. So I request all the students to be on time and be sincere about your classes. We'll have a wonderful session to have. Thank you, everyone. Over to you, Aditi ma'am. Thank you so much, Anju ma'am. Thank you, everyone. Have a good day.